Hello dear learners. Today we are going to continue with the case study based questions again. This is case study 2 and this is from chapter again gravitation. Very good case study is there. And in the next video I'll be uploading the marking scheme which has been issued by CBSE so that you can come to know that what type of questions will be covered up and what will be the marks weightage for the different questions, right? So let us begin with the video. We know that an object experiences acceleration during free fall. हमें क्या पता है कि acceleration जो है body experience करती है when it is falling freely, right? This acceleration sorry, experienced by an object is independent of its mass. What does this say? This acceleration is not dependent on mass. Mass पे ये depend नहीं करती. This means that all objects, hollow or solid, चाहे वो खाली है, चाहे वो solid है, छोटा है, चाहे वो बड़ा है, ठीक है, दे विल फॉल एट द सेम रेट. सबके नीचे फॉल करने का जो रेट होगा, जो वेलोसिटी होगी, दैट विल बी द सेम. क्यों? क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहे. ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी. What story? Let's see. Galileo dropped different objects from the top of a leaning tower of Pisa. Yes, आपने ये नाम, this is very familiar name. What is this name? Leaning Tower of Pisa, which is in Italy. गैलीलियो ने क्या किया, वहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो टॉप से नीचे की तरफ फेंकने शुरू किए. ठीक है, क्यों शुरू किए? बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विद द सेम वेलोसिटी, राइट? सो नाउ नेक्स्ट इज एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ. आपको पता है कि जी जो है वो कांस्टेंट है अर्थ के नियर, ठीक है ना? तो all the equations for uniformly accelerated motion of the object become valid. कैसे वैलिड हो जाती हैं? जब हम a को रिप्लेस कर देते हैं g से. ठीक है जी, इसका मतलब है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन? h is equal to ut plus half gt square. और लास्ट वाली बनेगी v square minus u square is equal to 2gh. हमने a को g से रिप्लेस कर दिया और s को h से रिप्लेस कर दिया. ठीक है जी. Where the symbols they have their usual meanings. What usual? U is initial velocity, v is final, t is time taken, S is the distance or h is the height, g is the gravity. Which gravity? Acceleration due to gravity, right? In applying these equation, we will take acceleration a to be positive. हम a को positive कब लेंगे? When it is in the direction of velocity, that is in the direction of motion. Acceleration positive तब आती है जब उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से सेम होती है. ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में दोनों एक्ट करती हैं. और एक्सीलरेशन नेगेटिव कब आती है? व्हेन इट इज गोइंग टू अपोज द मोशन. ठीक है जी. एक चीज और, जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं देन वी यूज टू टेक जी टू बी नेगेटिव. जी की वैल्यू आप सबको पता है 9.8 और 10. ठीक है, वट एवर इज गिवन. जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे देन यू आर टेकिंग दैट थिंग अगेंस्ट ग्रेविटी. So g will be taken to be minus 9.8, and if you are falling it towards the earth then g will be taken as positive, that is plus 9.8 meter per second square. So let's begin with the questions. हो सकता है बेटे the case studies which are being discussed maybe इन्हीं में से आपको स्कूल में, आप different schools को प्रेफर करते हो तो हो सकता है कोई ना कोई सेम केस स्टडी आ जाए आपको. So see the first question. When a body is thrown up, the force of gravity is. किसी भी बॉडी को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है ना, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो किस तरफ एक्ट करती है? बच्चे यू ऑलवेज रिमेम्बर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है ना, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. The acceleration due to gravity is always directed downwards, right? If it is directed downwards, it means that it will be directing towards the center of the earth, and when it is
फॉलिंग फ्रीली, फ्रीली फॉल करे या अदरवाइज भी जब हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी, जिसको हम कह रहे हैं इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द मून्स सरफेस इज, हमें पता है, क्या पता है, इट विल बी 1/6 to that on the surface of earth. आपको ये चीज पता है, हमने ये चीज की प्रूविंग भी की हुई है क्लास में. So it is approximately 1/6 to that near the earth's surface, right? Now see the question number 3. Question number 3 is what? कहते हैं two objects of different masses, दोनों का mass different है जी, falling freely near the surface of moon, moon की surface पे freely fall कर रहे हैं. तो फिर अब आप क्या कहोगे उनकी वेलोसिटीज के बारे में? वो कहता है हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, उनकी जो वेलोसिटीज रहेंगी वो सेम रहेंगी, डेफिनेटली सेम रहेंगी थी. फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी. क्यों? क्योंकि हमने कहा फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, जो मून की सरफेस पे फॉल कर रही है, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा u 0 हो जाएगा और हमारी जो एक्सीलरेशन होगी वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है. पर कौन सी ग्रेविटी? जो मून की तरफ एक्ट करती है, ठीक है जी. और इस केस में आपकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी सेम फॉर दी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. अभी तो हम पैराग्राफ में पढ़ के आए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, बट दिस नीड्स योर लिटिल अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल बी थ्रू विद द क्वेश्चन. अब देखो जी, द पार्टिकल इज टेकन टू अ हाइट r above the surface, above the earth's surface. Let us suppose this is the surface, this is the radius, let this be radius r. कहता है जो एक पार्टिकल है वो कहाँ इज टेकन टू अ हाइट r above the surface of earth से r हाइट, उसने r डिस्टेंस को कवर अप किया, ठीक है जी. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करते हैं. We know what we know, g is given by gm over r square. This relationship we are knowing and it is equivalent to 9.8 meter per second square. ये तो हमें पता है, ठीक है. अब वो क्या कह रहा है, एक यहाँ पे ग्रेविटी से टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है ना. अब जो ऑब्जेक्ट लिया गया, जो पार्टिकल लिया गया, दैट हैज बीन टेकन अबव द अर्थ सरफेस टू अ हाइट r, ठीक है जी. सो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला r प्लस ये वाला r, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया, ठीक है. तो फिर हमारी ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, g डैश is equal to g is gravitational constant, m is mass of earth, ये भी नहीं चेंज होगा, पर हमने डिस्टेंस चेंज किया. क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. तो अब r क्या बन गया जी, r बन गया 2r, ठीक है, उसका स्क्वायर. क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप है ये. जब हमने इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो 2 का स्क्वायर किया 4gm ओवर r स्क्वायर. अब इसकी जो वैल्यू है, इस फैक्टर की वैल्यू है जी 1/4 into C gm over r. It is equal to 9.8, right? तो g डैश की वैल्यू हमारे पास ये क्या आ जाएगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9.8 को 4 से. देखिए जरा, जब हम 4 2 8 पॉइंट 4 5 ना सॉरी 4 4 16 हो जाएगा. अप्रोक्सीमेटली आपकी g की वैल्यू आ गई जी, दैट इज ऑप्शन ए. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है. सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि डिस्टेंस आपका डबल हो गया है. क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई, आपका जो पार्टिकल लिया गया वो कितनी हाइट पे लेके गए, हम r हाइट पे लेके गए. तो ये वाला r प्लस ये वाला r, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2r. सिर्फ वैल्यू 2r पुट करनी है, आफ्टर दैट इट इज ओके, ठीक है जी. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट r, तो रेडियस ऑफ अर्थ है, हमें पता ही है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज
मैक्सिमम एट, ये बार बार हम लोग कर चुके हैं. इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ अर्थ. इट इज जीरो, sorry, it is at the surface of earth it is maximum. At the center of earth it will be zero. By mistake I spoke, sorry for that. And moreover, minimum at the equator. This has been done many times. So at the surface of earth, that is on the poles, it is going to be the maximum. ठीक है जी. So अब this video I am going to wind up. Right now, one more thing, please go through these videos. They are going to help you a lot. By that time, thank you and stay blessed.